ان کی جالی وہ سما اور وہ روزہ ان کا، ان کی جالی وہ سما اور وہ روزہ ان کا، ان کی جالی وہ سما اور وہ روزہ ان کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى۔ تو مین آج کا جو پروگرام کا جو کوشش یہی ہے کہ ایک تو انٹروڈکشن ہو، سب کا آپس میں انٹروڈکشن ہو جائے، ایک جو ہے ویوز آپ سب سینئر سب کافی آگے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے ایکسپیرینسز شیئر ہوں، اور جو نوجوان ہیں ان کے بھی ایکسپیرینسز شیئر ہوں، ایک ان کو بھی ایک لائن آف ایکشن ایک پلان کر کے کہ آگے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، تاکہ ایک ہماری آئیڈینٹی بنے، اور باقی جتنا بھی پورا ایک جو سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے، چاہے جس کو سوشل اپلفٹمنٹ کی ضرورت ہو، ایجوکیشنل اپلفٹمنٹ کی ضرورت ہو، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ 2020 میں ہم لوگوں نے کوشش کی کہ اپنی کمیونٹی کی ایک میگزین بنائی جائے جس میں لوگوں کے سجیشنز ہوں، ان کے آرٹیکلز ہوں۔ اس کے بعد اس کا ورژن 2 ہم لوگوں نے لانچ کیا 2022 میں، اور دور دراز تک گاؤں تک لوگوں کو پہنچائی۔ پھر اسی طرح ہم لوگوں نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کیا، آن لائن ٹیلنٹ ہنٹ 1 کیا، اس میں دیگر مسلم برادری کے لوگ اس میں جڑے، بچوں نے اس میں کافی فائدہ اٹھایا۔ پھر اس میں کئی طرح کے کمپٹیشن تھے، نعت کمپٹیشن تھا، ایسے رائٹنگ کمپٹیشن تھا، اسپیچ کمپٹیشن تھا۔ اس کے بعد پھر ٹیلنٹ ہنٹ 2 پروگرام کیا، اور شروعات میں ہی ہم لوگوں نے ایک سیمینار کیا تھا جس میں ریٹائرڈ ہمارے نسیم صاحب ONGC میں جو لیگل کاؤنسل تھے ان کے ساتھ، اور ڈاکٹر ریحان اسد نے اپنی قوم کی ہسٹری کے بارے میں بتایا، وہ بھی ویبینار بہت کامیاب رہا۔ اس کے بعد عید میلاد النبی کا پروگرام ہوا، اس میں بھی بہت کامیاب پروگرام رہا۔ پھر ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹ کی گائیڈنس کے لیے ویبینار کیا۔ قوم ارائیں وہ قوم جو کہ دوسروں کے لیے رہنمائی کا باعث بنتی تھی، وہ بزرگ جن کو دیکھ کر دوسری قومیں اپنا آئیڈیل مانتی تھیں، نقل کرتی تھیں، وہ طریقے، وہ عقائد جن کو دیکھ کر قوم امت رہنمائی حاصل کرتی تھی، بزرگ اور بڑے پیشوا جن کے گھروں میں رہا کرتے تھے، بڑے علماء اور بڑے مجدد ہم ان کو زمینوں کی مدد کیا کرتے تھے، امداد دیا کرتے تھے۔ ہم خود لوگوں کے لیے رہنمائی بنے، ہمارے بیچ میں مفتی وقار الدین قادری صاحب جیسے بڑے جید علماء ہوئے جو مفتی اعظم بنے۔ ایسی قوم جس کے درمیان مفتی صالح صاحب آج بھی خدمت انجام دے رہے ہیں، جو کسی فیلڈ میں بھی قدم رکھ دیں تو الحمدللہ، کسی آفس میں قدم رکھ دیں تو اپنی الگ شناخت بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ وہ اگر ٹیچر ہیں تو اسٹوڈنٹ کے درمیان مقبول ہو جائیں، وہ انجینئر ہیں تو کمپنی میں امپلائیز کے درمیان مقبول ہو جائیں، وہ اگر بزنس مین ہیں تو بزنس کی ایسوسیشن میں مقبول ہو جائیں، وہ کسان ہیں تو ان کی کھیتی دیکھنے لائق ہو جائے، ان کی فصل دیکھنے لائق ہو جائے، ان کی بات کرنا، ان کا چلنا، ان کے کپڑے، ان کا گھر، ان کے محلے، ان کے گاؤں شہر، اس شناخت کو میرے عزیز و محترم، اس شناخت کو آپ کو یاد دلانے کے لیے اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے، اگر آج مسلمانوں کے ایک بڑا طبقہ غریب ہے، غربت میں ہے، تعلیم سے دور ہے، تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں تھا کہ اس بیلٹ کے اندر وہ ہمارے اسکول، کالج اور ہاسپٹل ہوتے جس سے کہ وہ مستفیض ہوتا، اس کو فائدہ ہوتا؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم بڑے ہیں، ہمارے پاس یہ معاملات ہیں۔ تو میرے عزیزوں، محترم ساتھیوں، بہت کئی قومیں ایسی ہیں جو اپنے علاقوں میں اپنے غریبوں کا خیال رکھتی ہیں، عزیزوں کا خیال رکھتی ہیں، ان کے ذریعے
सैकड़ों हज़ारों तलबा पढ़ के निकल जाते हैं, फ्री में तालीम हासिल करते हैं, स्कॉलरशिप देती हैं अपनों को और दूसरों को, सबको स्कॉलरशिप देती हैं। उनके हॉस्पिटलों के अंदर चैरिटी में कम फीस में इलाज हो जाता है, उनके मैरिज हॉल में कम खर्चे में शादियाँ हो जाती हैं, वो गरीबों की शादियों में इमदाद करते हैं। तो अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हर फर्द ये मान ले कि मैं मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा हूँ, मैं जगमगाऊंगा, मैं रोशन होऊंगा तो उससे कौम रोशन हो सकती है। मैं जहाँ भी जाऊँगा रोशनी लुटाऊंगा। कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़िदाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। निकाह को आसान बनाएं। इस पे एक कुरान की एक सूरा है, सूरह नूर, और तुम में से जो लोग बेनिकाह हैं और तुम्हारे गुलाम और तुम्हारी बांदियाँ जो अच्छे हैं उनका निकाह कर दो। अगर वो फ़कीर होंगे तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें गनी कर देगा, और अल्लाह बड़ा वसी, फ़राक़ और अलीम है। और एक मशहूर हदीस है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि निकाह का सबसे ज़्यादा बाबरकत हिस्सा वो है जो सबसे ज़्यादा आसान हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि निकाह आसान होगा तो ज़िना मुश्किल होगा, और ज़िना आसान होगा तो निकाह मुश्किल होगा। तो निकाह को आसान करने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं, स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। ये किस तरह से हम कर सकते हैं निकाह और वलीमा सादगी से और कम खर्च में कैसे करें। निकाह की तकरीब में सिर्फ ज़रूरी इस्लामी रसूमात हों। हम देखते हैं कि एक शादी में 3-3, 4-4 गैर ज़रूरी रसूमात जो है वो आ गई हैं, उनको कैसे हम कंट्रोल करें। और खाने का जो तरीक़ा है वो स्टैंडिंग में है, उससे कैसे गुरेज किया जाए और उसको कैसे बैठ करके खाना खाया जाए। तो पहला सवाल मैं लेना चाहूँगा जनाब हामिद साहब से, चूँकि आप बहुत वक्त से यहाँ बरेली में हैं और आपने काफ़ी खिदमत भी अंजाम दी हैं, पहले भी ऐसी कई सारी कोशिशें हुई हैं। तो सर मेरा आपसे एक सवाल ये है, क्योंकि हम लोग अभी आज की तारीख में राइयों का कोई आदाद व शुमार नहीं है कि बरेली में कितनी आबादी, कितने लोग हैं, कौन कहाँ से आया है, और जो लोग भी यहाँ पर हैं शादी ब्याह में तो कहीं ना कहीं शिरकत करते ही हैं, मुलाकात होती है, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी तंजीम नहीं है कि अगर किसी के बच्चे को किसी एडमिशन से लेकर या किसी भी तरीके की कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो बरादरी मुत्तहिदा तौर पर उसको सपोर्ट करें, उसकी मदद करें या उसको गाइडेंस दें। तो मेरा सवाल यही है कि क्या बरेली के अंदर कौम का कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म, कोई एक सेंटर, एक ऑफिस होना चाहिए जहाँ पर तमाम तरह की हमारी जानकारी हमें मिले। कोई बच्चा है हमारा राय आदमी का और उसका सिलेक्शन किसी अच्छी जगह हो गया है और वो उसका फीस का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, तो उस फीस का इंतजाम हमारी तंजीम करेगी। ईद पे कोई किसी के घर नहीं जाएगा, तो औरतों की तो ईद ही नहीं होती। अभी एक वो बर्तन साफ के बैठी है तो जला साहब पुराने आ गए, इतनी सुइयाँ निकालो, अब वो इनकी जना वो आ गई, उसमें कोई किसी घर नहीं जाएगा। जब लोग बाहर से आते हैं तो उनके जो खाने पीने का इंतजाम होता है उसमें कई बार दिक्कत होती है, तो वो इंतजाम भी हमारी कमेटी करेगी। कौम में जैसे अभी नसीम सर ने बताया कि एजुकेशन में कहीं ना कहीं बैकवर्डनेस है, तो क्या हमें पर्सनली तौर पे कुछ करना चाहिए बरेली के अंदर? कोई ऐसा सेंटर, कोचिंग सेंटर या कोई ऐसा एजुकेशनल इदारा हम लोग यहाँ बनाएं जो कि हमारी कौम राइन अकेडमी उसको रन करे। लेकिन एक हमारा एक ऐसा इदारा हो जो बॉर्डर एजुकेशन भी दे कम से कम, और हमारी जो दीनी तालीम है उसको भी आगे लेके जाए। तो वहाँ वो क्या सीख रहे हैं और हमारा दीन क्या कहता है, हमें दोनों को शामिल करके आगे चलाना है, तो उसमें उन बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। किसी भी काम को करने के लिए एक कमेटी बनानी पड़ेगी, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, आपको डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा। विदाउट डाटा यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप कमेटी बना के मेंबर बनाइए, उस मेंबर की ड्यूटी बनती है वो उसमें कलेक्शन पर मंथ या पर ईयर के हिसाब से कलेक्शन दें। मैं ये बोल रहा हूँ चंदा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए होता है काम के लिए, टाइम भी चाहिए होता है जी। ना बगैर पैसे के काम हो सकता, ना बगैर टाइम पे काम। आप लोग करिए, हम आप लोगों के साथ। समझ लीजिए हमको अपना अराई का गूगल एक तैयार करना है, तो अगर आप मेरी
میرے بارے میں سرچ کریں گے، اگر کوئی سوچنا میری پوری اس میں انفارمیشن بھری ہے تبھی آپ پتہ کر پائیں گے کہ ہاں ان کا تعلق جو ہے پیلی بھیت کے گاؤں ادے پور سے ہے، ان کے والد فلاں ہیں، ان کے بھائی فلاں ہیں۔ اور قوم کے لیے اگر بچوں کے لیے آگے مستقبل کے لیے کام کرنا اور رائی کی پہچان بنانا، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں سب لوگوں کو جڑنا بھی چاہیے۔ اور انہوں نے ہمیں بغیر کچھ یہ اکیڈمی نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا، وہ کیا دیا؟ وہ دیا ہے ڈاکٹر ریحان نے جو بک لکھی ہے، وہ بک کو بڑی کوانٹٹی میں چھپوا کر ہر لائن برادری کے بچے اور گھر میں ہونا چاہیے، وہ لوگ سمجھ جائے گا کہ ہم کون ہیں۔ انشاءاللہ کریں، اس کو پورا ایک پلیٹ فارم مل جائے گا کہ ہم کہاں سے آئے، کون ہے، بتانے میں آسانی ہوگی۔ وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے میری سمجھ سے۔ یہ بہت مشکل ہے الجھی ہوئی بتھی کو سلجھانا، اہل دانش نے اسے بہت سوچ کر کیا ہے۔ تو آج جو صورتحال ہے رائیوں کی ہو بہو ویسی ہی ہے، اس طرح سے لوگوں کی پہچان ہم لوگوں میں پہچانے جائیں۔ کیا وجہ ہے جو لوگ ہمیں بھول گئے ہیں؟ ہمارے فور فادر کو لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، ہر جگہ جانتے تھے، جس گاؤں میں ابھی کسی نے ذکر کیا یہ بندہ بھی ہوتا تھا، وہ وہاں کا پردھان چیئرمین سب کچھ رہتا تھا۔ تو اس کا مطلب پرانے ٹائم میں ہم لوگوں کی عزت، ہماری پہچان تھی، ہمارے وقار میں کیا کمی آئی، ہمارے دھرموں میں کیا کمی آئی، کیا ہم نے ایسا کیا کہ ڈے بائی ڈے ہماری پوزیشن جو کرتی چلی جائے۔ ہمیں اس کے لیے کام نہیں کرنا ہے ہم کس طرح سے پہچانے جائیں، ہمیں کام کرنا ہے، انسانیت کے اس پہ کام کرنا ہے، قوم کے لیے کام کرنا ہے، پہچان خود کا خود بن جائے گی۔ اگر ہم پہچان کے لیے کام کریں گے تو پہچانے جائیں گے، چل کام نہیں کر پائیں گے۔ سبھی برادریوں کی اگر مخصوص تنظیم ہے، ہندوؤں میں چلے جائیں، سکھوں میں چلے جائیں، ہماری کوئی تنظیم نہیں، کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، ہم اپنی بات کام کریں۔ بچے کمپٹیشن پاس لگاتے ہیں، ان کو ایڈمیشن نہیں کر سکتے، پتہ نہیں لگتا کون بچہ کیا کرتا ہے، پلیٹ فارم کو سب ضرورت ہے، اپنی بات رکھ سکے، کوئی پریشانی ہے سب کے سامنے آ سکے۔ پرشاسن میں جانا ہے، آج ڈاکٹر میٹر ہے، بہت ساری رجسٹریشن نہیں ہو رہے تھے، کیسے لوگوں کو اپنا کیسے جائیں، تو سب کی بھی پلیٹ فارم سب ضرورت ہے۔ کہ ہم کو اپنی پہچان بنانے کے لیے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی اسی طرح کا بنانا چاہیے، تو ایسے اس میں ضروری ہے کہ ہم اپنی پہچان بنائیں، ہم اپنے بارے میں بتائیں، تو اگر بتائیں گے تبھی لوگ جان پائیں گے، ورنہ رائن کے نام سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری جگہ دوسرے اسٹیٹ میں بھی رائن ہے۔ ہماری ایک پہچان ہے تنظیم، دوسری اقوام کو دیکھتے ہوئے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے رب العزت کا کہ ہمارے یہاں آپ پراؤڈ مانیے گا، کہیں سوچو یہ کوئی الگ سے چلتا، میں الگ سے نہیں چلتا ہوں۔ دوسری اقوام کو اگر دیکھیں اور اپنی قوم کی طرف اگر دیکھیں تو اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے۔ ہم لوگ کسی کے یہاں خوشی ہے جب بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کسی کے یہاں غم ہے، اگر کہیں موت ہے تو دیکھو دوسری قوموں میں اتنے لوگ نماز جنازہ میں نہیں ہوتے، اتنے بھائی ہوئے ہوتے۔ الحمدللہ آج کی یہ پہچان ہے۔ الحمدللہ۔ کرم ہم پر یہ تیرا اے میرے رحمان ہو جائے، کرم ہم پر یہ تیرا اے میرے رحمان ہو جائے، کہ منزل دونوں عالم کی ہمیں آسان ہو جائے، کہ منزل دونوں عالم کی ہمیں آسان ہو جائے۔ طاہر صاحب اور ان کا بھی نام ہے، ان کو بلا دیا۔ سب جانتے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آسمان میں جو آدمی اپنے یہاں کھڑے ہو کر کھانے کا انتظام کرتا ہے تو وہاں دوسرے کے یہاں جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ خود کے چاہتا ہے کہ میں بیٹھ کر کھاؤں، لیکن جب اس کا نمبر آتا ہے تو سوچتا ہوں تو کھڑے ہو کھلاؤں۔ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آج ہی اس بات کا تہیہ کر لیں کہ میں اپنے یہاں پروگرام میں بیٹھ کر کھانے کا شرعی لحاظ سے انتظام کروں گا۔ اگر اس طرح سے ہماری قوم کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے کہ سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیں تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک۔ ہم لوگ جاتے ہیں بیٹھنے کی جگہیں تلاش کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں نوازا ہے، اللہ نے تمہیں ہر اعتبار سے نوازا ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے اس قوم کو تعلیم سے لے کر ہر چیز سے نوازا ہے، خوبصورتی بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اللہ نے نعمتیں بھی دی ہیں، اللہ نے دولت بھی دی ہے، اللہ نے
एजुकेशन भी दी है अल्लाह ने, नौकरियां भी दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुन्नत के खिलाफ हमें दुनिया में आने का मकसद हमारा सिर्फ यही है, हम अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें। आप सभी हजरात बखूबी जानते हैं कि कौन कौन से रिवाज हमारे यहाँ बहुत आम हो चुके हैं, और ये भी जानते हैं कि कौन कौन से रिवाज और कौन कौन से रस्में उनमें से सही हैं, शरीयत के मुताबिक हैं, और कौन कौन से ऐसी हैं जो शरीयत के खिलाफ है। हर बंदा उस चीज़ को अच्छे से जानता है, लेकिन चूंकि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि मोमिनों को याद दिलाते रहो, इन्हें बताते रहो, इन्हें सिखाते रहो, क्योंकि याद दिलाना, बताना, सिखाना, रहनुमाई करना ये मोमिनों के लिए फायदेमंद होता है। जो हजरात जिनको अल्लाह ने नवाजा है, बड़ी दौलत उनको दी है, मानो सरवत उनके पास है, तो उन लोगों को उन रसूमात अदा करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती है, कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके पास इतना सरमाया नहीं है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना माल और दौलत नहीं दिया है, जरा उनके बारे में सोचिए कि जब उनके घर का प्रोग्राम होता है, शादी की का जब वक्त आता है, तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। कभी अगर सिर्फ यही समझ करके, सिर्फ यही बात जहन में रख करके कि हम अपने खर्चों को कम करें और ये जो बेजा रसूमात हैं इनको कम करें, सिर्फ इस वजह से कि जो हमारे दूसरे गरीब भाई हैं इनकी शादियां भी आसानी से हो सके और इज्जत के साथ में ये भी अपनी जिम्मेदारियों से संतोष हो सके, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी भी बड़ी बरकतें आपको अता फरमाए। इनकी बारात आनी थी, वो IPS लड़का हैदराबाद में, उसने लड़की वालों से शर्त रखी कि बारात के अंदर कोई खाना आप नहीं करेंगे, कोई जहर मुझे नहीं चाहिए, और अगर कोई खाना मेरे साथ आए हुए बारातियों के लिए आप करना चाहते हैं तो आप अपने मोहल्ले की 5 गरीब लड़कियां देख लीजिए और उनके खाने का खर्चा, उनके जहेज का खर्चा सब मैं करना चाहूंगा, और मैं अपने निकाह के साथ उन 5 मुस्लिम लड़कियों का भी निकाह कराना चाहता हूँ। फजूल खर्ची अगर कम हो तो ये बड़ी अच्छी बात है, दीन की बात है, खासकर वो चाहे शादी का मामला हो या जीवन का कोई भी मामला हो जी, जो फजूल खर्ची है आप उसे कम करें जी। विशेषकर शादियों में इन्हीं बिंदुओं ने आगे बढ़ाया, लोग आगे बढ़ते चले गए, तकालीफ आती चली गई, उन चीजों को कोशिश करें कि कम करें। हर आदमी के पास एक मद होनी चाहिए खर्च करने की, हम किसी अच्छे काम के लिए उस पैसे को खर्च करते हैं, किसी की मदद के लिए खर्च करते हैं। रोड मैप कैसा होगा, अब कमेटी बनेगी इंशाल्लाह, तो उसके लिए हमें कैसे काम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं शाबिर साहब से आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके का एक रोड मैप माइंड में लेके चलेंगे कि हमें कमेटी के साथ में किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन आपका होगा, क्योंकि अभी प्लानिंग की तो बात हो गई है लेकिन इनिशिएटिव की बात नहीं हुई है, तो हमें इनिशिएटिव भी लेना पड़ेगा आगे बढ़ के कि मैं खुद अपनी ज़ात को आगे करके बोलूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ इस पैनल में नौजवान हैं, तो मैं यही कोशिश करूँ कि इनिशिएटिव लेने की ज़्यादा लोग कोशिश करें कि हम क्या कर सकते हैं आगे बढ़ के, क्योंकि अभी पहली फिजिकल मीटिंग है ये हमारी, तो एक एक्शन तभी ले सकते हैं कि मैं आगे आया कहूँ। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं एक इच्छा में डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट रन करता हूँ डिजिडेश अकेडमी के नाम से, तो मेरा आज का इनिशिएटिव ये है कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में अगर ऐसा स्टूडेंट आता है जो फीस को नहीं पे कर सकता, उसके लिए 50% मैं बिरादरी के लिए फीस डिस्काउंट दे रहा हूँ। सारे लोग जो भी हम यहाँ पर हैं और नहीं हैं, उन सब लोगों का पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो भी हम मतलब ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो सब लोग को एक साथ कैसे लेकर चलेंगे। तो मेरे ख्याल से जो लोग अभी इसमें वर्किंग में हैं, आसिफ भाई हैं, नसीम भाई हैं, और 2-4 लोग और हैं जो मतलब सारी चीज़ों को देख रहे हैं अभी तक, अब सब लोगों को उसमें ज्वाइन करना है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से हर साल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए और उसमें सब लोगों का मशवरा तो जरूर लिया ही जाएगा, साथ में वोटिंग का कोई सिस्टम रखा जाए। जी, ऐसा शाबिर साहब ने बताया कि इसके लिए हमें एक कमेटी तो बनानी पड़ेगी इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, और इस कमेटी का मतलब हर ईयर इलेक्शन हो, उसमें जो है पूरे डिवाइड हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो और सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, बाकी पूरी चीज़ अगर हम इस चीज़ को लेके चलेंगे तभी हम इस चीज़ को आगे कामयाब कर सकते हैं।
वरना ये इतना हेल्दी डिस्कशन हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है, बट इसको अब इम्प्लीमेंट करना है बिल्कुल। ताकि अब ये जो भी यहाँ पर गैदरिंग हुई है बहुत काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ है, इस चीज़ को कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट के लिए कमेटी बनानी पड़ेगी और इसमें हम सारे फील्ड्स में काम करेंगे, एजुकेशन से स्टार्ट करें जी। ये जो न्यू जनरेशन आ रही है उसमें जैसे अभी ये कोचिंग के सर थे, जो है आफ्ताब सर थे, तारिक सर थे, और ये 10 के बाद में कैसे करें हम लोग इसमें कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं, बच्चों को जो है आगे वो करें और जो है बच्चे अपने हर उसमें फील्ड में जाएं, डॉक्टर हों और सिविल में जाएं, जी ठीक है, हर फील्ड में जाएं। बाकी और जो बच्चे अपने पुअर हैं उसको हेल्प करें अपनी इस वाले इस कमेटी को ये है कि मैं हूँ नदीम है, जितने ज़रूरतमंद है हम ये कैसे कर सकते हैं, जितना जो खर्चा जैसे आता है उसमें हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जिससे ज़्यादा कंसेशन करके जितना हम अपने वेव ऑफ करके उतना ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और बाकी तो मेन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पूरी बनानी पड़ेगी और फिर ये एक कोशिश ये रहनी चाहिए कि यहाँ से जैसे अभी निकले 3 बजे यहाँ से जाएँ तो उसके बाद यही ना हो कि बिल्कुल ठंडे हो जाए। जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, मीन्स एज अ कैरियर, तो ऐसे लोगों का जो डेटाबेस बने हर एक गाँव में 2-3-4 लोग जो बना के टीम होती है तब उस पर फिर आगे काम हो सकता है। और फिर जो भी अगर किसी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत है तो यहाँ पर करियर काउंसलर हैं, हेल्थ में अगर किसी को ज़रूरत है तो डॉक्टर्स लोग हैं, किसी को अगर लीगल सर्विस में ज़रूरत है तो एडवोकेट्स हैं, हमारे पास हर तरह के लोग हैं। हम किसान परिवार से संबंध रखते हैं। जब किसान जमीन में एक बीज बोता है तो उसे ये पता नहीं होता कि मेरी उगाई हुई फसल को कौन खाएगा। इसी तरीके से ये जो कमेटी बनाई जा रही है इसका फायदा हमारी आने वाली नस्लें लेंगी। ये एक ऐतिहासिक मूवमेंट है हमारे लिए और आप सबके लिए। तो इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम कमेटी के मेंबर का, जो नए कमेटी के मेंबर यहाँ पर बनाए गए हैं, और इसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजर का और किच्छा से आई हुई टेक्निकल टीम का, दानिश मलिक की टीम का और रिजवान भाई की टीम का। यहाँ पर मेरे बुजुर्ग जितने भी हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने छोटे भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो भी राइन है वो सब इस एकेडमी के मेंबर हैं, लेकिन बात यह है कि जो एक्टिवली काम करेंगे वो 10, 15, 20 लोग जो भी होंगे इंशाल्लाह ताला उनकी एक कमेटी फॉर्मेशन की बात है। आज का प्रोग्राम जो था वो बहुत ही इफेक्टिव था। सबसे अच्छा मुझे ये लगा जो पैनल सेक्शन था वो आपको डिस्कशन बहुत बढ़िया था। अमूमन होता क्या है कि एक बंदा स्पीच दे रहा है और बंदे उसको सुन रहे हैं, कभी कभी मोटिवेशन हो रहा है कभी नहीं हो रहा अपने, लेकिन यहाँ पर जो पैनलिस्ट जो वाला पॉइंट था मुझे बहुत पसंद आया। मेरा नाम समीना शाहिद है, मदर फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से यहाँ इन्वाइट हुई हूँ और ये अराइन एकेडमी का जो प्रोग्राम रहा ये वाकई बहुत काबिल तारीफ़ है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यहाँ के जो लोग जो कर रहे हैं वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो लोग इतना अच्छा, इतना आगे, इतनी मेहनत, इतना आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आज 12 तारीख 20 अप्रैल को अराइन एकेडमी कमेटी की मीटिंग हुई। माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल मीटिंग हुई। तो प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा। जैसा कि हम लोग इस तादाद में आज इकट्ठा हुए और सारे इंटेलेक्चुअल लोग थे जिनका कनेक्शन अपने आप में एक आदमी 100 के बराबर था, और जो आज भी डिस्कशन हुए हैं वो बहुत अहम मौज़ूआत थे और इंशाल्लाह अगर हमारी कौम इन बातों पर काम करे तो 1 साल के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान है और मैं बरेली में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बरेली दर्पण देख रहा हूँ। और जिस तरह से एकेडमी ऑफ राइन ने आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, शहर भर के ख़ास तौर से राइन के साथ में जो मीटिंग की और राइन कम्युनिटी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए ताकि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर कर पाएँ, हम अपनी एक अलग पहचान बना पाएँ, उस पर लोगों ने अपनी अपनी राय दी। और इस तरह का प्रोग्राम बरेली में मैं समझता हूँ राइन कम्युनिटी की जानिब से पहली बार हुआ है। मैं मौलाना तारिक रज़ा मिसबाही, डायरेक्टर मदरसा इस्लामिया तालीम कुरान नमरिया, आज राइन एकेडमी के इस प्रोग्राम में हमारी शिरकत हुई और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे हमें नज़रियात यहाँ से मिले। और जो मिशन राइन एकेडमी लेके चल रही है तालीम व तरबियत और इस्लाह मुआशरा, ये बहुत अहम है आने वाली नस्लों के लिए। अल्लाह पाक इस अराकीन के काविशों को, कोशिशों को कबूल फरमाए। मैं मोहम्मद इमरान सिरसी से और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदरसा फैज़ान अली सिरसी में चलाता हूँ और ये प्रोग्राम में आया था
दारान अकाडमी। और दरअसल इसका प्रोग्राम मैंने अपने मदरसे में भी, इस अकाडमी ने जो है वो जाड़ों के दिनों में जो है वो स्वेटर वूटर वगैरह जो है उन बच्चों को तकसीम किए थे। और आज भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और हम चाहते हैं आगे भी प्रोग्राम अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी टीम को जिन्होंने ये मुनक्किद किया। प्लेस वेन्यू के लिहाज से भी ये बहुत अच्छा था, सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पर और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी टीम्स जो बनेंगी आगे इन फ्यूचर वो सही तरीके से इस काम को अंजाम देने में अपनी पूरी कोशिश करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज जो प्रोग्राम हुआ बरेली शरीफ में, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और कोशिश कर रहे हैं सभी लोग कि अपनी कौम के लिए सबके अंदर जज्बा है कि कौन अच्छे से अच्छा बेहतर कर सकता है। इसके लिए कमेटियां बनाई जा रही हैं और उस कमेटियां बनाने के बाद में फिर फर्दर जो भी डिसीजन होगा वो लिया जाएगा और आने वाले समय में इंशाल्लाह बरेली बहुत अच्छा करेगा। शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम अराइन कमेटी के जो ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके लिए हम जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं सबको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो हमारी कोशिशें इसमें कामयाबी अता करे। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा ये हमारी बिरादरी के लिए, हमारी कौम के लिए। और अल्लाह ताला जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाए, अल्लाह उनको हौसला अता फरमाए। बहुत शानदार प्रोग्राम कराया आप आज़म साहब और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मंथली या 6 मंथ में ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अराइन एकेडमी की एक फ़िज़िकल बैठक आज बरेली में मुनक़िद की गई है। उसके लिए जो लोग भी वहाँ फ़िज़िकल मौजूद हैं, मैं ख़ास तौर पे उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और हम लोग पहले वर्चुअली काफ़ी बार अक्सर मिलते रहते हैं, लेकिन फ़िज़िकल तौर पे ये पहली बैठक है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो प्रोग्राम बरेली में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, मैं किसी वजह से उसमें शामिल तो नहीं हो सका, लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ऑर्गेनाइज़र्स को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अराइन एकेडमी का जो सफ़र शुरू हुआ कोरोना के दौरान और तब से आज तक तमाम एक्टिविटीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, टैलेंट हंट, कोचिंग बच्चों को, गाइडेंस बच्चों को देना और जो भी जिस भी तरह से किसी की मदद, सब कुछ अराइन एकेडमी करती रही। मेरे बुज़ुर्गों को, दोस्तों को और तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। द एकेडमी ऑफ अराइन स्टडीज़ एंड रिसर्च की तरफ से एक छोटा सा पैगाम मुंतशिर करना चाहता हूँ। एकेडमी कल बरोज़ इतवार 20 अप्रैल सुबह 10:30 बजे पीलीभीत बाईपास रोड पे दरबार ख़ास बैंक्वेट हॉल में एक मीटिंग मुनक़्क़द कर रही है, जिसका मेन मकसद है टू क्रिएट एन अवेयरनेस टुवर्ड्स द एजुकेशन एंड सोशल इश्यूज़ इन द कम्युनिटी। मेरी तरफ से तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, बड़ी खुशी की बात है कि अराइन एकेडमी आज बरेली में अपना पहला प्रोग्राम कर रही है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो कदम अब तक ऑनलाइन थे वो बरेली में पहली बार ज़मीनी तौर पर अमल में आ रहे हैं। अराइन एकेडमी का मकसद अराइन बिरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनकी दीनी, तालीमी, माशी और समाजी तरक्की के लिए खुलूस दिल, नेक नियती और ईमानदारी से काम करना है। पिछले 5 सालों से एकेडमी ये काम कर रही है और अराइन बिरादरी की एक बहुत बड़ी तादाद, ख़ास तौर से नौजवान नस्ल, उससे जुड़ी हुई है। अब तक जो काम एकेडमी ने किए हैं उसकी तफसील अराइन एकेडमी के अरकान आपको बताएंगे। इस वक्त भी AMU और JMI के दाखिले के क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं। मैं अराइन एकेडमी की तमाम काविशों की कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि उस तहरीक में दामे दरमे सखने हिस्सा लेकर उसे कामयाब बनाएं। आमीन।